कहा था कि इसमें आधे कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम के हैं, आधे हिंदी मीडियम के हैं, तो मैं दोनों में बैलेंस करके चलूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो उसमें जो आपके इंटरव्यू के सब्जेक्ट में मैंने देखा, पहला है टू टेस्ट द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू द सर्विस। जिस सर्विस आप ज्वाइन करना चाहते हो उसमें आप कितने सुटेबल हो। अब आप जज बनना चाहते हैं तो जज के लिए क्या चीज चाहिए सबसे पहले, तो आप देखिए उसके लिए सूटेबिलिटी के लिए आप इंटरव्यू में किसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसको, उस क्वालिटीज को उसको आप माइंड में रखना। जैसे सबसे पहले एक जज ऑनेस्ट होना चाहिए, बहुत जरूरी है, सबसे पहले जरूरत होती है ऑनेस्ट होने की। फिर जो है आपको सब्जेक्ट का बहुत नॉलेज होना चाहिए आपको। अब नॉलेज ये टेस्ट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू में वो आपको नॉलेज के बारे में नहीं पूछे, लीगल नॉलेज के बारे में नहीं पूछे, दे कैन आस्क यू एनीथिंग। लेटेस्ट डेवलपमेंट इन योर सब्जेक्ट, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग्स, उसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। और जब आप ये जब यू शुड अंडरस्टैंड द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल, दे हैव हैंडल्ड lakhs and lakhs people in their life, and they know how to judge a person. So whatever you talk in few minutes, they will be able to understand what is your aptitude. You want to be honest, you want a person of virtues, or you want to be easygoing. They can understand everyone. So be careful when we are talking to them. With every answer, every word, they can understand you. You can take the, suppose the knowledge, they may take the latest rulings of the Supreme Court, latest development in law, all the things they can take. And I'm sure you would have prepared by now yourself. Next is, they have mentioned about the record of the school and college. What are all your record is there in the school and college. अब उसमें आप क्या क्या करते थे, उसमें कोई आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी आपकी, जैसे आप एनसीसी में थे या एनएसएस में थे या कोई और, आपने कोई डिबेट कॉम्पिटिशन, किसी तरह की कोई एक्टिविटीज है तो वो अगर आपने लिखी भी होगी, मैंने आपने देखे कुछ फॉर्म्स जिसमें आप ये भरते हैं, तो उसमें इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज है तो उसके बारे में यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फुल्ली, अंडरस्टैंड फुल्ली अबाउट दैट. They may ask any question, you should be able to answer. Next is that with regard to this only, there is a hobbies. अपनी हॉबीज होती है, आपने क्या क्या आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबीज है आपकी. Now you have to be very well prepared for the about the hobbies. In the interviews, you write in the your form, you fill up the form with the, you write some hobbies. In that hobbies, please be thoroughly prepared. They ask any type of questions. See, for example, recently, some time ago, I was a member in the board in one particular institution in Rajasthan. We won't tell because we are bound by the oath of secrecy not to reveal certain things. So there, when I talked to the candidates, we interviewed the candidates. So one candidate asked, I asked his form, it was written that his hobby is reading the latest books. So I asked the candidate, what is the book you read last? It actually happened just a few months ago in Rajasthan. The candidate told me that he has read this Harari's book, Sapiens, The Sapiens. So I asked him, can you tell me, Harari has mentioned the biggest fraud with mankind. What was that biggest fraud with the mankind? So he replied, the invention of agriculture. What a beautiful answer. I was thrilled to see that. See, that means he has thoroughly gone into that book and he's answering that. I just told the board members, all members, I convinced to give them one of the highest marks in that. Just one question I asked. Now, you see that it's not that you can test a person by one question, but we were seeing it, entire board is talking to them and all. But then, you see, you can easily understand the depth of the student's knowledge.
So your hobby, if you have written that you are reading the books, then you'll be prepared to answer which are the latest books you have read, what are the contents of that. So by chance you have written some hobby and you are not fully prepared, it is better you go through now. There was another candidate in the same set of interviews. He has written in his hobby the basketball. He plays, he's a basketball player. So he asked one question that I will ask only one question about basketball. If you answer me nicely, I will be very happy. तो मैंने पूछा कि बास्केटबॉल और लाइफ इसके बीच में एक कॉमन चीज है, वो क्या कॉमन चीज, कोई भी एक चीज कॉमन बताओ, आप रुक के सोच के फिर बताओ मेरे को. आई टोल्ड हिम यू स्टॉप फॉर 30 सेकंड, थिंक एंड देन आंसर मी. तो उन्होंने कहा गोल, बास्केट में भी गोल होता है, लाइफ में भी गोल. बहुत अच्छा लगा मेरे को. आई गेव very high marks to that candidate also. Of course, there we had asked some other questions. There was a long interview, about 25 minutes interview, but one of about a hobby, I'm telling you this. Whereas recently, last month, before this result came, we were conducting mock interview of civil services in Chennai in some institutes. In one of the institute, one candidate, he had written his hobby was utility cycling. So very typical hobby. Okay, good. Then I just started with questions like this कि यूटिलिटी साइकिलिंग आपकी हॉबी है. तो मैं सिर्फ यहां से शुरुआत किया कि जब यूक्रेन और रशिया का वार हो रहा है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसमें क्यों इंटरफियर नहीं कर पा रहा. तो उसमें जो भी आंसर दिया, फिर मैंने कहा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन से देश में लोकेटेड है. तो उसने कहा नेदरलैंड में. मैं कहा वेरी गुड, नेदरलैंड के कोई 2 बड़े शहरों के नाम बताओ. तो उन्होंने कहा एक तो दी है गए, दूसरा वगैरह पता नहीं है. तो मैंने कोई बात नहीं, एक एम्स्टर्डम में आपने सुना है कि, तो क्या, हाँ सुना है मैंने, जरूर होता है, ठीक है. तो मैंने कहा ये आप बता सकते हैं कि अपने प्रधानमंत्री एम्स्टर्डम गए थे थोड़े दिन पहले, उनका एक स्वागत हुआ था, उसमें क्या एक पर्टिकुलर चीज थी उसमें. तो ही वॉज नॉट एबल टू रिप्लाई. ओके, तो मैंने कहा प्रधानमंत्री को साइकिल प्रेजेंट किया गया था, वहां के प्रधानमंत्री भी साइकिल पे चल रहे थे, इनको कहा आप साइकिल पे चलना चाहेंगे, उनको साइकिल ऑफर किया गया था. तो मैंने कहा व्हाई इट इज सो इन एम्स्टर्डम, यू आर नॉट एबल टू आंसर. अब आप देखिए, अगर कोई भी यूटिलिटी साइकिलिंग, आप समझते होंगे यूटिलिटी साइकिलिंग का मतलब होता है साइकिल एज ए हॉबी, not as a hobby. If only cycle as a hobby, but here cycling as a mode of transport. When you are going for some work or something, instead of using any other transport, you use cycle as a transport. That is called utility cycling. तो जब आपकी यूटिलिटी साइकिलिंग हॉबी है, और दुनिया में नेदरलैंड ही एक ऐसा कंट्री है जिसमें 40% ट्रांसपोर्ट होता है साइकिल पे होता है, वहां पे वीआईपी भी साइकिल पे चलते हैं वहां पे. तो व्हाई यू आर नॉट एबल टू नो अबाउट दैट. So definitely it is a negative point. I told you to prepare yourself fully. एक और था रिसेंटली इसी सिविल सर्विस की एंट्री में, एक लड़की थी जिसने अपनी हॉबी लिखी थी ग्रीक मिथोलॉजी, इंटरेस्ट इन ग्रीक मिथोलॉजी. तो मैं पूछो कि आपने जैसे ग्रीक मिथोलॉजी है तो 1-2 सवाल पूछा हमने. तो मैंने बताओ कि इंडियन गॉड्स और ग्रीक गॉड्स के बीच में क्या समानता है. क्योंकि एक्चुअली मेरी, अब आप देखिए जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो ये सोचिए कि ये मत सोचिए कि वहां के मेंबर्स हैं उनको ये चीजें नहीं आती है. बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो लोग, बहुत कुछ जानते हैं. हो सकता है जो आप सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के वो एक्सपर्ट होता है. जैसे मैं ग्रीक मैथोलॉजी मेरा अपना सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं बहुत पढ़ा है. मैंने पिछले 10-15 साल से ग्रीक और लैटिन फिलोसफी, मिथोलॉजी के ऊपर बहुत पढ़ा मैंने. तो मैंने जब उसको पूछना शुरू किया, शी वॉज नॉट एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन. तो मैंने कहा फिर आपने क्यों लिखा ये. तो कि नहीं आई लाइक इट. मैं कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आप प्रिपेयर कीजिए. तो उसने लड़के ने कहा अभी 1 महीना और है मैं इसमें, तो उसमें ग्रीक मिथोलॉजी अगर हम लिखा है तो उसके कोई ज्यादा पढ़ने की, तो यू डोंट हैव टू गो थ्रू द होमर्स, इलियड और ओडिसी और एनीथिंग. यू जस्ट एटलीस्ट नो what were the Greek gods, what are the myths of Greece. So all these things brief you can read it some book, or you can even go to internet and you can read about the Greek gods, Greek myths, then the Titanic wars and how it, all the things you at least. So what I want to tell you is that कोई भी हॉबी आप लीजिए, हॉबी आपने लिखी है, जो भी अगर आपने हॉबी लिखी है या आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लिखी है,
उसके ऊपर आप पूरा कमेंट दिया और पढ़िए थोड़ा और कुछ भी पूछा जा सकता है आपको उसके बारे में। और ये सबसे श्योर शॉट, और बाकी चीजें तो सब उनके हाथ की बात है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन आपकी तो हॉबी या आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, वो आप खुद उनको कह रहे हो कि मेरे को इसके ऊपर आप पूछिए। तो प्लीज बी फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड अबाउट दैट। नेक्स्ट थिंग, जो इन्होंने आपके जो इसमें लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, कैरेक्टर, पर्सनालिटी एंड फिजिक। So now character and personality, that's a personality test. इंटरव्यू को we call it as a personality test. एक्चुअली क्या होता था पहले 1980s से पहले जो है इंटरव्यू जो हम तैयारी करते थे उसमें पूछा जब यही होता था कि आईक्यू, योर आईक्यू विल बी टेस्टेड इन इंटरव्यू। उसके बाद में जो है जो धीरे धीरे जो डेवलप हुआ इसमें जो अभी जो है सोशल कोसेंट, एसक्यू, ईक्यू, उसके बाद में ईक्यू आया, इमोशनल कोसेंट। आप जानते हो कि इमोशनल क्वेश्चन के बारे में आपने पढ़ा होगा, जब कोलमैन ने जब ये थ्योरी दी 1980s में, तो ये सारे दुनिया में चलो इमोशनल क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इमोशनल क्वेश्चन इज नथिंग बट यू हैव टू स्टडी द अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द अदर्स हु आर अराउंड यू एंड मेकिंग यूज ऑफ दोज इमोशंस यू हैव टू मेक सक्सेस इन योर टीम। दैट इज द इमोशनल क्वेश्चन। सो ईक्यू, सो आईक्यू से ईक्यू के ऊपर शिफ्ट हुआ। फिर ईक्यू के बाद में ये हुआ कि जब ये स्टडी किया गया यूएस में कि जो मैनेजर्स जो थे बहुत ही हाई ईक्यू और आईक्यू वाले मैनेजर थे, बट दे वर एबल टू अकाउंट फॉर ओनली 90% ऑफ द सक्सेस ऑफ द कंपनीज प्रोग्रेस, रिमेनिंग 10% रिमेन अनअकाउंटेड। देन वेयर फ्रॉम दिस 10% comes? So a new theory came. This was actually earlier existing in psychology. That was social quotient or social intelligence, which is measured in social quotient, SQ. So social quotient, this is for the IQ, EQ, and then social quotient, SQ. The social quotient within the society, how you behave with your team people and how you take them along. It's like a trick. आप कितने tricky हो, कितने shrewd हो, ये चीज होती है SQ में आती है। You may not be very intelligent, your IQ may not be very high. IQ accounts for only 50% of the success, but the SQ accounts for the 100% of the success. So they will be testing your EQ and SQ, how you are able to be successful, how you take the team along, how you take care of it. So the personality, basically testing personality is testing your social quotient. आप गूगल में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप सोशल क्वेश्चन के बारे में थोड़ा जरूर पढ़िए, सोशल इंटेलिजेंस और सोशल क्वेश्चन। सो यू हैव टू गिव एन इंप्रेशन दैट you have very high SQ and you can take the team along and you will be able to play with everybody's emotions and the social requirements, and that is how you make the success to everybody. Next thing, the general knowledge, आपके जो सिलेबस में लिखा हुआ है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। सी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इज ऑलवेज a hot subject. It has to be anywhere, anything can be asked in general. It may be related with your law, may not be related with law. Anything unconnected with the law also can be asked. They may ask the latest Supreme Court judgments. Yes, that's also current affairs. Latest, what is happening in the country. Say for example, अभी सुप्रीम कोर्ट के आप लेटेस्ट जजमेंट देखिए। जैसे आपको एक था, थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी कि जो हैदराबाद में जो एनकाउंटर हुआ था, पुलिस एनकाउंटर, जिसमें आई थिंक 4 लोग मारे गए थे, तो वो एनकाउंटर सही था या नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में जब रिट फाइल की गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बैठाई थी। दैट कमेटी गेव ए रिपोर्ट that encounter was not justified. Now the member board may ask you, and being a judicial magistrate or whatever you are entering in the judiciary, higher judiciary, wherever, it's very important because in encounter cases, as per Supreme Court ruling, the inquest is conducted only by the judicial magistrate. Earlier it will be executive magistrate, now by judicial magistrate. So you have to, definitely you have to have your opinion about encounter. Suppose the judges ask her. Now you see, when you are answering, please be sure that
Your answer should not come from your personal opinion or from your emotions. The answer should be confined strictly within the framework of the law. कुछ चीजें आपको पसंद नहीं है, जैसे you don't like certain things. Don't straight away say, no, this is a bad, this should not be done, this should be banned. Suppose board asks you, the police encounter is a extrajudicial killing. Do you agree? And should we not ban the police encounter? There should not be police encounter. How will you answer? Now, you don't fly into emotions. You can't go and tell that, no, the police should not do the encounter. Let every accused face the law. No, that may be your personal opinion. But you are entering in the service which has to interpret and execute the law. So you are supposed to be within the frame. You should remember, what does the right of private defense says? Section 96 to 106 IPC, right of private defense. What does it say? So you can't deny the right of private defense to anyone, including the private individuals. They can also do the encounter. So encounter we cannot deprive unless you amend the right of private defense. As long as the right of private defense remains as a part of IPC and Indian law, everyone has right of doing the encounter. So, but then you have to understand that encounter has to be within the framework of law only. That is, where your right of private defense can go to the extent of killing other person. So there are all the provisos and all the provisions are given in that right of private defense. According to that, so you can answer, no, you cannot ban the right of this encounter. But during the inquiry, we have to find out that right of private defense was properly exercised in the particular encounter. If it is not exercised, agar right of private defense proper ढंग से exercise नहीं हुआ है, and they have used excessive force more than what was required for the right of private defense, then they should be held responsible and culpable for the offense they have committed. And that is how Hyderabad encounter, they have now recommended that they will be dealt with under Section 302 IPC. That's correct. So now you cannot ban all the encounters in the country. But then this is the correct thing. Now recently, just 2 days ago, you would have seen Supreme Court gave one more judgment, very interesting judgment, that the accused taking the plea of private defense need not prove it beyond the reasonable doubts. That's the latest. So in the same subject, you can see latest development क्या हो रहा है, वो भी आप देख सको कि ये लेटेस्ट डेवलपमेंट, तो ये सारी चीजें एक साथ पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा अगर दिया, तो यानी कि अगर आपको प्राइवेट डिफेंस है, प्राइवेट डिफेंस उस पर्टिकुलर टाइम में आपको फीलिंग होगा अगर मैं उसको शूट नहीं करूंगा तो वो मेरे को खत्म कर देगा, तो आपको बस उस वक्त लगा और आपने कर दिया. अब उस वक्त आप राइट ऑफ प्राइवेट दिस प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी या use of unreasonable doubts, beyond all the reasonable doubts, that you cannot prove it because there's no point. It's only fraction of seconds. In fact, to your, I will not be telling this, it's out of reference, but I would like to say, I was part of 22 encounters in Tamil Nadu. I got President's Gallantry Medal in myself shooting down the rowdies. In Meerut, I had shot down 2 people, the Bauria criminals, and here also Tamil Nadu, there were so many encounters. So that's a different. So I would like to say that you have to be answering it within the framework of law. That is how it should. So latest rulings of Supreme Court, everything, any question is asked. They may ask, okay, current affairs, they may ask, Agnipath, do you agree about this? What is your opinion about this? So we can simply say, see, you may like, may not like. That's the difference. Many people, they are talking against the recruitment of Agnipath. आप उनको पसंद करें ना करें, लेकिन आपने जो बात करनी होगी मां इंटरव्यू जो जवाब देना आपना कौन कर देना है कि ये सरकार की पॉलिसी है. जिस तरह से सरकार ने जो अपनी पॉलिसी रिक्रूटमेंट की जो बनाई है, उसको वी कैन नॉट एज ए जुडिशरी, मे बी वी मे नॉट बी एबल टू दिस थिंग, क्वेश्चन दैट. But then I personally feel that
there is a anger among the youths seem to be justified to some extent because they have the feeling of insecurity after 4 years. So if the government should address to this issue of insecurity, and if they are carefully communicated and address the issue, perhaps the agitation may come down. Like that, you have to be very shrewd in answering. Don't jump to the conclusion. See, you never know. To be very frank with you, many members have their own opinion. They are opinionized. और अगर आप उसकी एडवर्स ओपिनियन देते हो तो दैट ऑल्सो मे नॉट लाइक दैट ऑल्सो. सो बेस्ट थिंग इज take within the framework law, as within the law, as you are a judicial officer tomorrow, what you will do. You may not like certain things, but whether law permits that or not, within the law, you cannot interfere in the government policy. Now, government is a democratic government elected by the people. They decide some policy. Unless it contravenes any provisions of law, अगर वो कोई भी संविधान के खिलाफ है या कोई किसी कानून के खिलाफ है तो आप उसमें इंटरव्यू कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते आप उसमें. तो अपने ओपिनियन जो है उसके जो फ्रेमवर्क जो रूल्स है उसके हिसाब से अपना ओपिनियन करें. करंट अफेयर में, करंट अफेयर और कई सारी चीजें होती है. जैसे आजकल जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, तो उसमें आप बोले रशिया यूक्रेन का वार लेकर के उसके कारण कितने सारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हुए, किसने कितने सारे इंटरनेशनल अफेयर्स में हुए सारे. आप देखिए कितने सारा वो उसका चेंज हो गया, सारा कुछ माहौल ही चेंज हो गया एकदम. यूरोपियन यूनियन, उधर नाटो, सारे कुछ एक्टिव हो गए और उसके कारण इकोनॉमिक रिसेशन इतनी आ गई है. उसके कारण कहाँ का जो फेड रेट्स है जो चेंज की गई है, यूएस, यूके, even Japan has given the Fed rates now. Earlier there was negative rate of interest, now they have started giving interest by banks. So these are all because they want to prevent the recession. तो ये किसी तरह अपने नेबरिंग कंट्रीज है, तो इंडिया जो चारों तरफ जो देश है उन देशों में हर देश में कोई न कोई मिस्टेक हो रही है, कोई न कोई प्रॉब्लम हो रही है. की प्रॉब्लम हो रही है वो, तो वो प्रॉब्लम पूरा आप समझ लीजिए. तो ये करंट अफेयर किसी तरह का कोई करंट अफेयर पूछ सकते हैं. तो ये आपने डेफिनेटली आपने किया होगा तैयार उसके लिए. और नेक्स्ट तो है आपके राजस्थान डायलेक्ट्स एंड कस्टम्स जो आपके इसमें लिखा हुआ है. यस, जो इसलिए मैं जानबूझ के बीच बीच में कुछ राजस्थान डायलेक्ट लाना चाहता हूँ ताकि जो राजस्थान के जो कस्टम्स है, ये तो आपका पेपर होता होगा, आपने पढ़ाई होगा उसमें, फिर भी आपका जो है टेस्ट कर सकते हैं नॉलेज उसमें. इंटरव्यू में क्या होता है कि इट्स नॉट ओनली व्हाट यू आंसर बट हाउ यू आंसर ऑल्सो मैटर्स ए लॉट. जवाब कैसे देते हैं कई चीज, जैसे आप एक कोई क्वेश्चन आपको पूछा गया है, उसका आप जवाब नहीं जानते तो आप उसका गलत आंसर देने की कोशिश मत कीजिए. आप सॉरी सर मेरे को ये पूरा, अगर आप हिंदी मीडियम में तो ये कह सकते हैं सॉरी सर मैं इसके बारे में पूरा अभी नहीं जानता हूँ, या ये कहते हैं कि मेरे को इसको पूरा याद नहीं है इसके बारे में अभी. ओके, तो उसमें दे वोंट माइंड. बट अगर आप किसी तरह से कोई आंसर देना और गलत आंसर देने की कोशिश करोगे तो उसमें इफ यू आर नॉट वेरी श्योर देन यू कैन से सर आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक टू माई, इफ माई मेमोरी गोज राइट, आई थिंक दिस इज द आंसर फॉर दैट, दिस इज व्हाट आई फील. तो इसलिए be very careful about how you answer also. You should not be very abrasive while answering. You can tell your opinion but very politely and very respectfully. Okay, next thing, इंटरव्यू जब आप देते हैं, एक मेंबर आपको जो सवाल पूछता है तो आप जवाब देते हो, सब थोड़ा सा लंबा जवाब होता है, तो कंटिन्यूसली उसी मेंबर की तरफ आप मत देखिए, उनकी आंखों में आंखें मत मिला रखिए, थोड़ा सा इधर उधर आप देखते रहिए. दो पास वाले मेंबर्स को भी थोड़ा देख के, हालांकि फोकस उन्हीं के ऊपर रखना, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर भी देखते रहिएगा ताकि सभी मेंबर्स को ये हो कि आप सभी के बारे में यू आर कॉन्शियस. नेक्स्ट कि अगर आप किसी क्वेश्चंस को पूरा समझ नहीं पाते हैं तो आप उनको दोबारा पूछिए. कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस पूछते हैं वो, लेकिन आप पूरा समझ नहीं पाते हैं. You can ask sir, sorry sir, I could not, can you please repeat the question. तो उसमें क्या होता है, ठीक है आप समझ, तो उसमें क्या नॉट ओनली वो रिपीट करेंगे बट थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे ताकि आप आराम से उसको समझ सके. तो इसलिए गलत आंसर देने के बजाय या नहीं समझ के चुपचाप रहने के बजाय यू कैन ऑलवेज आस्क, टेक ए लिबर्टी एंड आस्क देम टू रिपीट द क्वेश्चन एंड दे मे एक्सप्लेन टू यू आल्सो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. और जब सवाल पूछते, कोई सवाल डिफिकल्ट होता है तो उसमें क्या है, आप एक तुरंत आप सारा एकदम बोलना शुरू करते हैं, लेकिन
you have not been able to assimilate the entire answer in your mind. तो इसलिए आप ये कर सकते हैं कि आप उसको थोड़ा सोच के, आप थोड़ा सा पॉज दीजिए, थोड़ा सोच करके उसके सारा जो उसका जो आंसर है उसको आप एक माइंड के अंदर पूरा असिमुलेट करके और फिर उसका आप आंसर देंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पॉज करने में कोई नुकसान नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप तुरंत ही आप रिप्लाई दें उसका। एंड जब एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो एक ध्यान दीजिए, मैंने ये देखा जनरली मैं जितने भी बोर्ड में बैठा हूं, कई एटलीस्ट 30% स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, कैंडिडेट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो ज्यादा बोल जाते हैं उसके। आपको बहुत सारा जानते हो आप, जैसे कि भाई आपको ये पूछा जाता है कि आप क्या सोचते हो रसिया और यूक्रेन का वार कब बंद होगा? तो अगर आप ये कहना चाहें देखो साहब रसिया क्यों वार हुआ था, शुरुआत उसकी हिस्ट्री सुना करके, फिर अभी नाटो उसमें शामिल हो गया, फिर वहां का यूरोपियन यूनियन उनको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इस तरह से लंबा आप सुनाने के बजाय आप कुछ भी, आप जो भी आप कहना चाहें ब्रीफ में पूछ जाए, किसी भी तरह की चीज होती है आप ब्रीफ में बोल करके उसको समझा कोशिश करें खत्म करने की। पूरी हिस्ट्री आपको बहुत कुछ आता है लेकिन इतना आप देने की कोशिश मत करो, क्योंकि क्वेश्चन को समझ करके उसके लिए जो सक्सीट आंसर होता है वही आप देने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको एक हिंट देना चाहता था कि आप जब एक बहुत एक श्रूडली अगर आप फेस करते हो इंटरव्यू, तो उसमें आप एक जवाब देते वक्त आप कुछ लीड देने की कोशिश कीजिए। ये एक बहुत बड़ी अच्छी टेक्निक है इंटरव्यू, मैंने देखी, मैंने कुछ कैंडिडेट्स की देखी, बड़ी अच्छी लगी। और लास्ट एक मॉक इंटरव्यू था यहाँ सिविल सर्विसेज का, जिसमें मेरे साथ एक आईएएस अफसर बैठा था, बड़ा यंग आईएएस अफसर, जिसको इंटरव्यू में यूपीएससी में बहुत हाई मार्क्स मिले थे उसको। तो वो मेरे को बता रहा था, और मैं भी देखा कई कैंडिडेट्स की ये बड़ी अच्छी ट्रिक होती है। आवाज नहीं आ रही सबकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा फोन था ना, फोन होगा। जी सर, जी सर, जी सर, वापस कनेक्ट हो। हेलो, हाँ सुरेंद्र आपको? हाँ जी अरे सर। जी सर, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही, सुन रहे हो? जी सर, यू आर ऑडिबल। नो दिस, वन सेकंड। हाँ या नाउ गेटिंग मी? अभी सुनाई दे रहा है आपको? यस सर। हेलो चारण साहब, सुनाई दे रहा है आपको? बिल्कुल दे रहा सर। हाँ ओके ओके, सॉरी, करंट वेंट ऑफ इन बिटवीन, सो दे दिस थिंग वाईफाई गॉट डिस्कनेक्टेड। तो मैं ये इसके ऊपर आपको बोल रहा था कि लीड, हाउ टू गिव द लीड। तो देखिए वो तो मैं आईएएस अफसर उससे डिस्कस कर रहा था बीच में गैप में, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कहा, जब मेरे को पूछा था उन्होंने यूपीएससी में, सो ही टोल्ड व्हाट डू यू लाइक टू रीड दिस थिंग बुक्स, सो यू आर टेलिंग आई रीड मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिस इंटरनेशनल अफेयर्स, and I also see the some blogs in international affairs and all the thing.
He said, why do you like? He said, I like international affairs. So they started, his entire interview happened in the international affairs. And because of the international political affairs or international politics, he was very expert in that. His subject itself was international politics. And he had done good preparation. So entire interview happened and he got a very good marks. एक और मैं आपको एग्जांपल बताऊं, यही राजस्थान का मैं दे रहा हूं वापस आपको एग्जांपल। थोड़े दिन की पहले की बात है, जब मैंने एक इंटरव्यू में था, मैं कोई किसी इंस्टीट्यूट में, तो एक बच्ची आई थी, उसके बच्चे में हॉबी में लिखा हुआ था कि रीडिंग द नो राइटिंग डेली डायरीज। तो मैंने कहा ये बड़ी अच्छी हॉबी है, तो क्या लिखते हो आप डेली डायरी में, क्या लिखते हो? तो बच्चे ने बताया मैं ज्यादातर इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर लिखती हूँ। क्या क्या लिखती है, अभी लेटेस्ट क्या लिखा था उन्होंने बताया, ये लिखा था मैंने। तो फिर हमने उसके इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर पूछना शुरू किया। आप देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर आप देखिए, शी स्टार्टेड आंसरिंग सो वेल, वी वर ऑल एस्टोनिश्ड। सारे बोर्ड के मेंबर देखा कि साहब इतना बढ़िया बोल रही है। और वो बच्चे जिसने 5वीं क्लास में 5वीं पास करते स्कूल छोड़ दी थी, और मैरिज के बाद में फिर उसने अपना जो है जो 10वीं या बोर्ड का एग्जाम पास करके फिर उसने बीए करके फिर एग्जाम लिखा। And we gave the highest marks to that girl. So see how she take the lead. Her hobby was writing the diary. और उसमें कहते क्या लिखती हो, तो वो कह रही मैं इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में। और इंटरनेशनल के बारे में जब पूछने लगा तो वो बहुत ही एक्सपर्ट थी उसमें, बहुत बढ़िया बताया। एक गांव के बच्चे जिसने कितना, वी वर ऑल इम्प्रेस्ड। तो इस तरह से आप जो लीड देने की कोशिश की, कोई जो आपको अच्छा समझते हैं, जैसे आपको मान लो सुप्रीम कोर्ट कि ओके दे मे आस्क यू दैट ओके एनीथिंग अबाउट दैट, व्हाट इज द लेटेस्ट situation in the Supreme Court judgment, what you want to talk about latest, anything about Supreme Court. You may like to hint a particular thing which you know. If you are lucky, the board member may ask you the questions related with that hint also. So take something which you are very good in that. That giving a lead, it's a good technology or good trick, I should say, not technology, sorry, good trick which you should follow. And last I would like to say that you should attend the mock interviews. अभी आपका जो मेरे को पता नहीं कब है आपके इंटरव्यूज, लेकिन अगर टाइम है तो उसमें आप देखिए, आप ज्यादा पढ़ तो रहे हैं, आप अपने घर में तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट में बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन आप मॉक इंटरव्यू जरूर आप अटेंड कीजिए। अगर आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूट में मॉक इंटरव्यू अगर अरेंज होते हैं तो अच्छा है, अगर मॉक इंटरव्यू नहीं होते हैं तो आप अपने कुछ फ्रेंड्स है जो आपसे सीनियर्स है, जो कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स है, उनको रिक्वेस्ट करना 4-5 लोग साथ में बैठ करके एक बोर्ड बनाए और आप उसमें जाके आप इंटरव्यू दें। जिन्होंने इंटरव्यू फेस कर रखा है, यही इंटरव्यू जिन्होंने फेस कर रखा है, उन्हीं को रिक्वेस्ट करना, 3-4 या 4-5 जुडिशियल ऑफिसर्स, उनको रिक्वेस्ट करके आप जाके उनका इंटरव्यू आप फेस कीजिए। एक जना इंटरव्यू फेस करा, दूसरे देखते रहिए आप कि उसमें क्या गलती हो रही है। अगर आप यहाँ पे बैठे होते तो आप ये जो ऐसा कहते हैं या ऐसा नहीं कहते, उस तरह से यू कीप सीइंग द mock interviews. In fact, mock interviews give a lot of confidence. I have talked to many candidates and everybody felt that mock interviews are very, in fact, some of the candidates, they keep on attending mock interviews because knowledge, okay, it's only, you don't know what thing can be asked from where. But then, as I told you, what you answer and how you answer, these two things matter. So how you answer, this you will be learning from the confidence which we acquired by mock interviews. So please attend as many mock interviews as possible. Okay. So this is what a few random tips I thought I would like to give you. And thank you very much for giving me this opportunity and this thing. I hope this will be useful to you. And I wish you all the best. You are the future of Rajasthan. The judiciary is the future. And I pray that you should go up to the Supreme Court so that you should be able to protect the constitution of the country. Thank you, Charan Sahab. Anything you want to ask me? कुछ पूछना Okay. है सर से, कोई डाउट बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट? यस सर। Yes, please. नमस्ते सर। सर मेरा एक बस नमस्ते। आपसे एक छोटा, जी सर, हाँ, सर एक हाँ। क्वेश्चन था कि जहाँ पे समझ लो सर आपने बताया यूक्रेन और रशिया वाला वॉर, सर कभी कभी सिचुएशन हाँ। ऐसी हो सकती है कि हमें कोई उस पे मॉडल आंसर आता नहीं हो, तो उस सिचुएशन में हमें क्या हाँ। करना चाहिए सर? देखिए, आप जो भी आप पा रहा, अब आप जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप इसका क्या जवाब दोगे मेरे को कि व्हाट डू यू थिंक इज द, आप हिंदी में इंग्लिश में पूछना चाहेंगे? हिंदी। हिंदी मीडियम।
हिंदी में ओके। आप क्या सोचते हैं कि रूस और जो यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है ये कहाँ खत्म होगा? अब आप जवाब दीजिए मेरे को, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ क्या आपका कैसा रहा है जवाब। कुछ भी बोलिए आप इसके बारे में। सर इस पे मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन जहाँ तक है सर, जो भी हैं सर, जैसे रशिया है सर, वो होता है ना सर, एक महत्वाकांक्षा होती है सर किसी भी देश में आगे बढ़ने बढ़ने की। तो सर वहाँ पे जब तक उनकी महत्वाकांक्षाएं जो भी रशिया लेकर चल रहा है या यूक्रेन लेके चल रहा है, जब वो उनको पूर्णतया प्राप्त कर लेंगे तो मैं ऐसा मानती हूँ कि एक वो उनकी स्टॉपेज आ जाएगी कि हाँ अब सब कुछ हो गया है, और अब वो संतुष्ट हो जाएंगे। तो सर वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि रुक जाएगा। लेकिन अभी सर, अभी सिचुएशन देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि कहाँ पे रुकेगा और कहाँ तक जाएगा। ओके, इसी आंसर को आप थोड़ा सा और ब्रीफ करके ऐसे दे सकते हैं। बिल्कुल आपने जो कहा है उसी कंटेंट्स को मैं ऐसे कह सकता हूं कि रूस ने जो जिस किसी कारण से युद्ध की शुरुआत की है, लेकिन ये पूरी दुनिया को काफी महंगा पड़ा है। और जिस तरह से बाकी सारी जो दुनिया की ताकतें इसमें मिल रही है, उससे पूरी दुनिया इससे अफेक्ट हो रही है। और ये इसका जो एंड है काफी क्रूअल होगा अनलेस कि कोई आके इसमें इंटरवीन करे। बस इतना ही बहुत है, क्योंकि आप जैसे महत्वाकांक्षा से आप कह रहे हो तो आप रूस को ब्लेम कर रहे हो। अब नो यू डोंट नो दैट इज इट वेदर दैट रियली या इट इज ट्रू, एवरीबडी नोज दैट रूस वाज रशिया वाज इन्वेडर। रशिया को ये युद्ध करने की जरूरत ही नहीं थी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। पहले आपने क्रीमिया लिया, अब देखा कि आप यूक्रेन भी ले लेंगे उसमें साथ में। जो पहले रशिया तो डिसइंटीग्रेट हुआ था उसको वापस इंटीग्रेट करना, इट्स नॉट अखंड। जैसे अखंड भारत अखंड रशिया वो बनाना चाहते हैं, ऐसे अखंड बनते नहीं है। ऐसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इट्स नॉट दैट इजी। तो इसलिए आप ये बस यही कि जिस तरह से युद्ध का शुरुआत हुई है, रूस का जो है, आप ये भी महत्वाकांक्षा भी यूज कर सकते हो। चलो हो सकता है उन्होंने महत्वाकांक्षा से किया हो, लेकिन यूक्रेन भी काफी स्ट्रांगली उसको फाइट कर रहा है। और उसके साथ जिस तरह से बाकी दुनिया की ताकतें मिल रही है, इससे पूरा दुनिया का जो एटमोसफियर है वो काफी अफेक्ट हो गया है पॉलिटिकली एंड ऑल्सो इकोनॉमिकली। तो ये कोई कह नहीं सकता कब खत्म होगा, लेकिन जब भी खत्म होगा तब तक काफी नुकसान कर देगा सारे साथ में। ये अगर आप काफी नुकसान कर देगा, then it gives the correct answer. That's all. Because nobody can say when it is going to end. Yes. थैंक यू Anything सो else you मच। want to ask? Okay, thank you. Anything else? Okay, so all my best wishes. Saran sir, thank you very much for giving the opportunity. I would have come there, but since I got held up in Chennai, I had some work. In fact, this morning also I went to open one academy. IS coaching center was open. So morning I was busy in that function. So there are a lot of academic activities. I remain myself busy here. So I couldn't come and see you personally. Anyway, next time when you become a full-fledged judicial सर ये officers, that ऑफिसर्स time जब I'd like to see फाइनली you in the court फाइनली somewhere. सेलेक्ट हो Thank you. My जाएंगे best उसके, wishes. Thank you very much. सर जब ये ऑफिसर I quit. फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद एक प्रोग्राम रखेंगे इनके लिए, तो उसमें आप Sure, sure, आपको sure. Ah, you इनवाइट can करेंगे, have a उसमें yes, इनवाइट yes, करेंगे। yes, sir. Alumni get together. You can have that would be very good. Yeah, we feel. Thank you. थैंक यू All the सर, best. Bye bye. थैंक यू।